العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لإظلام؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں معز الدین عثمانی نظامی مرکزی ازہری آپ کے سامنے علم صرف کا 5واں درس لے کر حاضر ہوں۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ صحیح اور معطل کیا ہیں اور ان کے اقسام کیا ہوتے ہیں۔ تو اس درس میں ہم جانیں گے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، نمبر 2 صحیح کے اقسام کیا ہیں، سالم، محموز اور مضاعف، نمبر 3 معطل کسے کہتے ہیں، نمبر 4 معطل کی اقسام کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں۔ علم صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ فعل صحیح وہ فعل جس کے اصول یعنی فا، عین اور لام حروف علت سے خالی ہو، وہ فعل صحیح ہے۔ حروف علت کیا ہیں؟ حروف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اس کی مثال دیکھیے، فعل صحیح کی مثال جیسے علم، رکع، سجدہ۔ ان تینوں الفاظ میں دیکھیے کہیں پر الف، واو اور یا نہیں آیا، لہٰذا یہ فعل صحیح ہے۔ آئیے فعل صحیح کی اقسام کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ فعل صحیح کی 3 قسمیں ہیں، سالم، محموز اور مضاعف۔ سالم کیا ہے؟ سالم وہ فعل صحیح جس کی اصول حمزہ اور تضعیف سے بھی سلامت ہوں، یعنی نہ حمزہ آیا ہو اس میں اور نہ ہی وہ مضاعف ہوں، یعنی نہ ہی ان میں تضعیف واقع ہوئی ہو۔ تضعیف کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جانیں گے۔ جیسے کتبہ، جلسہ، نہ ان میں الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف علت ہے اور نہ ہی اس میں حمزہ ہے اور نہ ہی اس میں تضعیف واقع ہوئی ہے۔ نمبر 2 محموز۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ فعل صحیح جس کے اصول میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو، جیسے اکلا، سألا، قرأ۔ تو دیکھیں اکلا میں پہلا حرف حمزہ ہے، سألا میں دوسرا حرف حمزہ ہے اور قرأ میں تیسرا حرف حمزہ ہے، اور یہ تینوں حمزہ اصول کلمہ میں سے کسی حرف کی جگہ واقع ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مضاعف کیا ہے۔ ضاعف یضاعف تضعیف سے مضاعف ہے۔ مضاعف کی 2 قسمیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی وہ فعل صحیح جس کے عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس سے ہو، یعنی وہ فعل صحیح ثلاثی جس کے عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس سے ہوں، اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ جیسے فرع، یہ اصل میں کیا تھا؟ فرارا تھا، اسے فرع بنا دیے گیا۔ شد، یہ اصل میں کیا تھا؟ شددہ۔ تو عین اور لام کلمہ دونوں ایک ہی جنس کے ہو گئے تو اسے مشدد کر دیا گیا اور اس میں تضعیف واقع ہو گئی۔ مضاعف رباعی کیا ہے؟ وہ فعل صحیح رباعی جس کے فا اور لام اول ایک جنس سے اور عین اور لام ثانی ایک جنس سے ہوں، جیسے عصعص، دمدم، وسوس۔ تو اس میں دیکھیں عصعص، یہاں پہ فا اور لام اول عین ہیں اور عین اور لام ثانی سین ہیں۔ دمدمہ میں فا اور لام اول دال ہیں اور عین اور لام ثانی میم ہیں۔ اسی طرح سے وسوسہ میں فا اور لام اول واو ہیں اور عین اور لام ثانی سین۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ فعل معطل وہ فعل ہے جس کے اصول یعنی فا، عین اور لام میں سے ایک یا 2 حرف علت، وہ فعل معطل کہلاتا ہے۔ حروف علت آپ جانتے ہی ہیں، الف، واو اور یا ہیں۔ فعل معطل کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ وعد، قاد، دعا، وعا، غوا۔ دیکھیں وعد میں واو حرف علت ہے فا کلمہ کی جگہ، عاد میں الف حرف علت ہے جو کہ اصل میں عود تھا، واو تھا اصل میں، تعلیل کر کے یہ عادہ بن گیا ہے جو عین کلمہ کی جگہ واقع۔ اسی طرح سے دعا، یہ اصل میں دعابہ تھا، واو تھا، یہ تعلیل کر کے اس میں واو الف سے بدل گیا ہے، لہٰذا اس میں حرف علت لام کلمہ کی جگہ واقع ہے۔
वावा इसमें दो हरफ इल्लत हैं, एक वाव एक अलिफ जो या की सूरत में दिख रहा है, जो असल में या ही था और तालील के बाद अलिफ हो गया। वावा इसमें फ़ा और लाम कलमा हरफ इल्लत हैं। गवा इसमें आइन और लाम कलमा हुरूफ इल्लत। फ़ेल मुअत्तल की अक़साम क्या हैं, कितने किस्म का होता है, आइए देखते हैं। फ़ेल मुअत्तल दो किस्म का होता है, एक हरफी और दो हरफी, जिसे लफीफ भी कहते हैं। एक हरफी की तीन किस्में हैं, मिसाल, अजवफ और नाक़िस। और दो हरफी यानी लफीफ की दो किस्में हैं, लफीफ़ मफ़रूक़ और लफीफ़ मक़रून। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एक हरफी की तीन किस्में हैं, उसमें मिसाल। मिसाल किसे कहते हैं? मिसाल वो फ़ेल जिसमें हरफ इल्लत फ़ा कलमा की जगह वाक़ हो, जैसे वाअदा, इस्तैसरा, क़िफ़। वाअदा में देखिए जो फ़ेल माज़ी है और मुजर्रद है तो वाव शुरू में आपको दिख रहा है फ़ा कलमा की जगह। मज़ीद फ़ी में देखें इस्तैसरा, तो इसके असल कलमा क्या है? या सीन और रा, जो फ़ा आइन और लाम कलमा की जगह। बाकी अलिफ सीन और ता ये हुरूफ़ ज़ायदा है। तो या जो हुरूफ़ असलिया में पहला है फ़ा कलमा है वो या वाक़ हुआ, लिहाजा ये मिसाल हुआ। क़िफ़ ये फ़ेल अम्र है, वक़ाफ़ा से है ये, जिसमें वाव पहले था और हज़फ हो गया है साकिन होने की वजह से। लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि अगरचे वो हज़फ हो गया है लेकिन कलमे की मुअत्तल और सही होने में उसका एतबार किया जाएगा, और चूँकि वो फ़ा कलमा की जगह था तो अब वो मिसाल कहलाएगा। आइए देखते हैं दूसरी किस्म अजवफ़। अजवफ़ आया है जौफ़ से। जौफ़ कहते हैं खाली हिस्से को। खाली हिस्सा कहाँ होता है? बीच में होता है। लिहाजा जिस फ़ेल में हरफ इल्लत आइन कलमा की जगह हो, यानी बीच में हो, जिस फ़ेल में हरफ इल्लत आइन कलमा की जगह हो उसे अजवफ़ कहते हैं। जैसे आशा, आशा में देखें अलिफ ये आइन कलमा की जगह वाक़ है। बाया इसमें या जो है ये आइन कलमा की जगह वाक़ है। और कुल इसी तरह से, कुल असल में था कौल से, कूल था तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से वाव हज़फ हो गया है, जिसके क़वाइद आगे चलकर बयान किए जाएंगे। लिहाजा अगरचे वो हज़फ हो गया है लेकिन उसके हज़फ होने के बावजूद उसका एतबार किया जाएगा और कुल को अजवफ़ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आइन कलमा की जगह हरफ इल्लत था। आइए देखते हैं नाक़िस किसे कहते हैं। नाक़िस वो फ़ेल जिसमें हरफ इल्लत लाम कलमा की जगह वाक़ हुआ हो, जैसे क़दा, इश्तका, इमशी। क़दा में देखें लाम कलमा की जगह अलिफ है, इश्तका में भी लाम कलमा की जगह है, मज़ीद तीसरी मिसाल है। और इमशी ये हज़फ की मिसाल है, पहले अम्र है मशा यमशी से और इसमें या हज़फ हो गई है पहले अम्र में, आखिर में हरफ इल्लत जब बाक़ी होता है तो उसे हज़फ कर दिया जाता है। लिहाजा उसके हज़फ होने के बावजूद उसका एतबार किया जाएगा और उसे मुअत्तल नाक़िस कहा जाए। तो अब हमने देखा कि मुअत्तल बयक हर्फ की तीन किस्में मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस क्या होती हैं। उनकी मिसालों से हमने इन्हें समझ लिया। आइए देखते हैं मुअत्तल बदो हर्फ जिसे कि हम लफ़ीफ़ कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं, मफ़रूक़ और मक़रून। देखते हैं मफ़रूक़ किसे कहते हैं। मफ़रूक़ फ़र्क़ से आया है, यानी हरफ इल्लत जब दो होंगे तो उनके बीच में एक फ़र्क होगा, फ़ारिक़ होगा, फ़र्क करने वाला एक हरफ सही मौजूद। लिहाजा जिस फ़ेल में हरफ इल्लत फ़ा कलमा और लाम कलमा की जगह यानी ऐन कलमा उसमें सही हो तो उसे लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहेंगे। जैसे वक़ा, वक़ा। देखिए वक़ा में वाव और अलिफ के बीच में क़ाफ़ मौजूद है और वक़ा में वाव और अलिफ के बीच में आइन मौजूद है जो कि हरफ सही है, लिहाजा ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हुआ। लफ़ीफ़ मक़रून किसे कहते हैं? वो फ़ेल जिसमें हरफ इल्लत आइन कलमा और लाम कलमा की जगह वाक़, यानी दोनों हरफ इल्लत मिले हुए हों। जैसे नवा और इर्तवा। नवा और इर्तवा में देखें वाव और अलिफ दोनों मिले हुए हैं और फ़ा कलमा की जगह नवा में नून है, इर्तवा में रा है। इस दर्स में हम यही तक सीखेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम जानेंगे कि जामिद और मुतसर्रिफ़ क्या हैं। इस दर्स में हम जानेंगे कि जामिद और उसके अक़साम क्या हैं, और मुतसर्रिफ़ और उसके अक़साम क्या हैं, और मुतसर्रिफ़ और उसके अक़साम क्या हैं, और मुदारे बनाने के क़वाइद क्या हैं, इसी तरह से अम्र बनाने के क़वाइद क्या हैं। ये हम इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में जानेंगे।
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم بالخير. الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام؟ قد وأم المختار.